Hello young physics learner, welcome to my class. This is Bhavna physics class and today I am going to explain you one important experiment, that is Lenard and Halvorsz experiment, and in this experiment you will come to know the dual nature of electromagnetic wave. As I described in my previous video, that electromagnetic wave, that one example, the known example is light, is having the two nature, which is called a dual nature. Ray nature is but known nature of the electromagnetic wave, but now we are going to discuss about the particle nature of electromagnetic wave, and that particles are called photon, as I have described it in my previous video. So photons के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत important discovery थी कि हम light को इलेक्ट्रिसिटी पर्पस से यूज़ कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे बेस्ट एग्जांपल आजकल सोलर सेल है, मीन्स सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस से. तो सोलर सेल, सोलर पैनल्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स. और अब ये इंडिया में भी हर जगह यूज़ हो रहे हैं. जहाँ पर बड़े बड़े फार्म एरियाज़ हैं, वी कैन यूज़ दैट सोलर पैनल्स एंड वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट. And it is also told to you that this electromagnetic spectrum specific part is used for the photoelectric effect phenomena. Photoelectric effect phenomena, that is the concept that we can generate electron, we can eject electron from the surface of metallic body with the help of incoming radiation, and the limitation of that incoming radiation is in between ultraviolet to visible spectrum. These are only responsible for photoelectric effect phenomena. You may know from that previous video that how many electromagnetic spectrums are there in the series of electromagnetic waves. Okay, so that is given in electromagnetic wave chapter, and this is also in the playlist of Bhavna physics classes channel. You can go through with that. So here the Lenard, who was once physicist, along with Halvorsz, he did one experiment to prove that the electromagnetic wave is made up of small particles. That means the experiment purpose is what? Proof of dual nature of light oblique electromagnetic wave. The purpose of this experiment is only to prove the dual nature. Till the time we knew that light or any other electromagnetic wave is only in the wave form, but later on, this is the origin of modern physics. फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से मॉडर्न फिज़िक्स की डिस्कवरी हुई. मॉडर्न फिज़िक्स को क्वांटम फिज़िक्स भी कहा जाता है. और क्वांटम फिज़िक्स एक बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का. यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहते हो तो सबसे पहले ये बेस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ओके, सो मॉडर्न फिज़िक्स की ओरिजिनेशन यहाँ से है जब आप फोटोन के बारे में अच्छे से जानते हो. सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट what is electronics, and you are further able to understand what is the role of electronics in communication. ठीक है, आप मोबाइल यूज़ करते हो, रेडियोज़ यूज़ करते हो, आप कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ करते हो, पेजर यूज़ करते हो, टेलीविज़न यूज़ हो रहा है, ये और एडवांस होते जा रहे हैं. रेफ्रिजरेटर जो पहले इलेक्ट्रिकल था अब इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर हो चुके हैं. एक्वागार्ड, गीज़र एंड माइक्रोवेव ओवन, ये जितने भी अप्लायंसेस हैं ये सारे अप्लायंसेस अब क्या हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस. और इसके साथ ही साथ और भी एडवांस अप्लायंस हमें मिलते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड इलेक्ट्रॉनिक इज़ बेस्ड ऑन दिस मॉडर्न फिज़िक्स, एंड मॉडर्न फिज़िक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट इज़ फोटोन. एंड फोटोन, that identity of the photons, that was only discovered in Lenard and Halvorsz experiment. So that is the importance. My whole purpose of saying all this concept is to let you know
अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को पहले समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के बाद आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज आए थे एंड विच वॉज अ माइलस्टोन इन मॉडर्न फिजिक्स। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज के थ्रू ही फोटॉन्स की आइडेंटिटी को, प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, दे हैव टेकन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इनसाइड दैट इवैक्यूएटेड चैम्बर दे हैव पुट वन metallic rod and there is a window in this evacuated chamber and this one is quartz crystal window. This is cathode and this one is anode. Okay, so this one was the setup that was arranged by Leonard and Halvosh. This one is a quartz crystal. Quartz crystal का रोल क्या होता है, दिस इज़ अ विंडो, ये ग्लास विंडो है और इस ग्लास विंडो के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, इन्होंने जो लाइट यूज़ की थी दैट वाज द अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट थी, यूवी रेडिएशंस थे। सो रेडिएशन, ये जो चैप्टर है ये है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग है रेडिएशन के लिए हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, दैट ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। सो दे यूज्ड अल्ट्रावायलेट रेज एंड द रोल ऑफ दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज़ टू पोलराइज द अल्ट्रावायलेट रेज बिकॉज द इनकमिंग लाइट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन और एनी मशीनरी ओरिजिनेशन रेडिएशंस दैट आर अनपोलराइज्ड लाइट। यानी अनपोलराइज्ड लाइट ऐसी होती है जिसमें ऑल डायरेक्शनल वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स पाए जाते हैं। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड इफ it get polarized with some materials that are called polarizer, then it become the unipolar light. Unipolar means one directional light. So the role of that quartz crystal is to convert the unpolarized ultraviolet radiation to polarized ultraviolet radiation. Polarized करने से प्रॉपर्टी क्या गेन होती है कि एक डायरेक्शनल वेव्स आती हैं जो हिट करने में, एक डायरेक्शनल वेव का मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे वो फोटॉन्स डायरेक्टली हिट करेंगे एग्जैक्ट टू द सरफेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट, पोलराइज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसीलिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ किया गया। अब यहाँ से ये रेडिएशन फॉल डाउन करते हैं इस कैथोड पर। कैथोड, यू नो कैथोड दैट इज़ हैविंग सम एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ कैथोड से होगा क्या कि जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हुआ क्या, रेडिएशन जैसे ही फॉल डाउन कर रहे थे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस वैक्यूम ट्यूब में एंड दे कैन चेक दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड। यहाँ ये एनोड एक कम्यूटेटर के थ्रू, कम्यूटेटर क्या होता है, द डिवाइस विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो ये कम्यूटेटर के थ्रू इसको अगर हम अटैच कर देते हैं इस पॉइंट से, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ओके, अगर 1 पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो ये 1 पॉइंट जो कनेक्ट हो गया दैट इज़ विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने का मीनिंग है कि एनोड पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन सर्किट इज कंप्लीट एंड दे कैन कम टू द सर्किट इन दिस सर्किट इफ़ दिस सर्किट इज़ क्लोज्ड। अगर ओपन है तो नहीं होगा। कम्यूटेटर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ दिस सर्किट। यहाँ पर एनोड को हमें नेगेटिव पोलैरिटी पर भी आगे लाना होगा, वो अभी मैं आगे बताऊँगी आपको। अभी फ़िलहाल एनोड इज़ इन पॉजिटिव पोलैरिटी, तो पॉजिटिव पोलैरिटी में ये इलेक्ट्रॉन्स
अट्रैक्टेड हो रहे थे एनोड की साइड में, एंड द वैल्यू ऑफ द करेंट इंक्रीजेज मोर देन द वैल्यू ऑफ दिस बैटरी करेंट। तो इससे ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि दैट देयर इज an electron present in the vacuum tube and they are taking participate in electricity and they can increase the amount of current through the ammeter। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? माइक्रो एमीटर क्यों लगा? बिकॉज दैट इंक्रीज इन करेंट इज़ वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल, इसीलिए सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं लार्ज अमाउंट करेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करंट जनरेट हो रही है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में थी एंड दे कैन यूज़ दिस करंट इन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट्स। ओके, तो ये रोल था इसमें। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में ये ओवरऑल कंक्लूजन निकल करके आ रहा था, वर्किंग इसकी ऐसी थी, इस तरीके का इम्पैक्ट आया। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की अलॉन्ग विद हेल्वॉश, इन्होंने क्या देखा कि दैट टिल द टाइम वी आर applying the ultraviolet radiation to the cathode there is an increase in current, okay, but the ultraviolet radiation stops from falling over the cathode, then there is no current, no increase in current, and the base current due to this battery only that is flowing in the ammeter। clear? so that means what कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं इस कैथोड सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कैपेबल है। दैन नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फोटो इफेक्ट, दैट मीन्स लाइट इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देन द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटलिक सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना हो रहा था। ठीक है, अब इसके बेसिस पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ली और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए, और ये ग्राफ्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर देन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो ग्राफ आप लोग यहाँ पे ड्रॉ डेफिनेटली कर लेना। ओके, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ग्राफ था so this one is photo current I and this is intensity of radiation I. So intensity of radiation means what? How much intense light, intense ultraviolet radiation falls over the cathode. Okay, तो intensity के basis पर जब photo current का variation देखा गया, then the graph was like this way. That means linear graph, means photo current is directly proportional to intensity of incoming radiation. This is what? Intensity of radiation. रेडिएशन कौन से थे? यूवी रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में यूवी रेडिएशंस थे। ओके, फर्स्ट केस। नाउ कम टू द सेकेंड ऑब्जर्वेशन विच दे ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट फोटो करंट I and the stopping potential या anode potential. So this photocurrent and anode potential means photocurrent means the current due to the photoelectrons जो cathode से electrons eject हो रहे थे, and the anode potential that means the collector plate potential. So collector plate potential, you know that it is the anode potential, so they have applied the positive potential over the anode plate. So what they observed that आप यहाँ पर देखो zero anode potential पर भी there is some value of the photocurrent. That means that electrons have gained such a large amount of energy that they are able to reach up to the anode point.
without applying any positive anode potential. Clear? So they are capable of reaching towards the anode. फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि यहाँ ऑलरेडी देखो फोटो करंट जीरो नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड, as we increase the anode potential it reaches to the saturation value. Now there is no increase in the current, this current is constant, at which at intensity I1, this I1 is intensity, I1, I2, I3 are the intensity, where I3 is the maximum intensity of incoming ultraviolet radiation, I2 is lesser intensity and I1 is the least intensity applied to the cathode. Okay, now what happened means what कि इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर दे रहे थे, जो रेडिएशन है, दो ही वेरिएबल आस्पेक्ट को देख रहे थे लेनार्ड एंड हाल्बोश, तो वेरिएबल आस्पेक्ट क्या था, इनकमिंग रेडिएशन की इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो, एनोड की पोलैरिटी की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, तो एनोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो एनोड पोटेंशियल को चेंज किया जा रहा था, यानी इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो देखा गया पॉजिटिविटी चाहे जितनी भी इंक्रीज़ कर दी जाए एनोड की, उसके बाद फॉर द वन intensity value of incoming radiation there is the constant value of the photocurrent and this constant value is the saturated photocurrent, यानी अब इससे ज़्यादा saturated photocurrent मीन्स क्या है कि obviously number of जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड में जो प्रेजेंट है, मेटलिक सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी भी अपनी एक लिमिट है। एक इनकमिंग लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू पर उस लिमिट से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हर एक एटम के 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो उसके बाद अंदर यानी इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते फॉर द सेम इंटेंसिटी, यानी एनर्जी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो मिलनी थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो मिल चुकी है, और उसके बाद करंट यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि करंट सैचुरेटेड हो गई, अब उतनी ही करंट निकल पाएगी, इससे ज़्यादा करंट नहीं निकल पा रही है। क्लियर है, उससे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये सैचुरेटेड वैल्यू आ गई फोटो करंट की। ओके, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि अच्छा एनोड के इंक्रीज, एनोड पोटेंशियल के इंक्रीज़ करने पर अगर सैचुरेटेड करंट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, करंट सैचुरेटेड हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल डाउन कर रहे थे, दे हैव इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ कि I1 से I2 इंटेंसिटी कर दी, तो देखा कि जो फोटो करंट की वैल्यू पहले से बढ़ गई, पहले इतनी थी, सैचुरेटेड वैल्यू इतनी थी, अब उससे ज़्यादा बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। करंट की फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T एंड Q इज इक्वल टू NE। तो E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो सेम रहेगा, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर करंट इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये तो कॉमन फैक्ट है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने लगे अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी। मीन्स क्या है कि जो रेडिएशन जब इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले इनर शेल के थे वो भी निकल सकते हैं, या मे बी पॉसिबल जो पहले सारे आउटर मोस्ट शेल वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स अब इंटेंसिटी के इंक्रीज़ करने पर सभी एटम्स के फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जा रहे हैं। क्लियर? सो जब इजेक्शन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली फोटो करंट इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट इज वाई देर इज एन इंक्रीज इन द फोटो करंट वैल्यू, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस अगेन इट रीचेस टू द सैचुरेटेड वैल्यू। मीन्स अब इससे इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या है कि अब इस इंटेंसिटी की भी लिमिटेशन फिनिश हो गई, वॉट एवर बी द एनोड पोटेंशियल, वॉट एवर बी द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द एनोड पोटेंशियल। ओके, नाउ कम टू द थर्ड केस। अब इंटेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करा दिया गया, जब सैचुरेशन वैल्यू आ गई तो इसके आगे तो बढ़ना नहीं है, तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया गया। जब इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो ये चेक किया गया कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो करंट फिर से बढ़ गई, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्ट हो गए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, फिर से वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे पहुँच गए। तो मीन्स क्या हो रहा है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ये फिनोमेना यहाँ पर भी आया था,
कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो करंट है, फोटो करंट है, दिस इज कॉल्ड द फोटो करंट. फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन. तो ये फर्स्ट केस से भी आ रहा था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और आ रहा है नेगेटिव साइड में. जब एनोड पोटेंशियल ज़ीरो है तो उस समय फोटो करंट ज़ीरो नहीं है. ठीक है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की साइड में आ रहे हैं. ठीक है, अब ऐसी कौन सी हम वैल्यू करें जब ज़ीरो से आगे बढ़ाने पर तो करंट है, ज़ीरो से पहले ले जाते हैं यानी कि नेगेटिव में ले जाते हैं. तो जो कम्यूटेटर का रोल था पोलैरिटी चेंज करने का, अब कम्यूटेटर ने पोलैरिटी चेंज कर दी. मींस एनोड की साइड में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया. ओके, कम्यूटेटर का रोल वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का मैंने ग्राफ फिगर बनाई थी उसमें यही था कि अब क्या हो रहा है. आप उस फिगर को देख लो अगर आपने बनाई हुई है, अदरवाइज बुक खोल लो. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एनोड इज नाउ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दैट मीन्स द पोलैरिटी इज रिवर्स नाउ एंड नाउ द एनोड पोटेंशियल इज नेगेटिव. वैसे एनोड मीन्स होता है पॉजिटिव, लेकिन उसके पोटेंशियल को नेगेटिव किया जा रहा है. अब नेगेटिव करने पे क्या हो रहा है कि ये जो करंट थी, फोटो करंट थी, धीरे धीरे कम होने लगी. ये देखो कम वैल्यू हो रही है किसी भी इंटेंसिटी पे. किसी एक इंटेंसिटी पे पहले चेक कर लें, फिर बाकी इंटेंसिटी पर भी ये कम होती जा रही है. अब कम होते होते ये कहाँ पर आ गई, ज़ीरो आ गई एक पोटेंशियल पर. उसी तरीके से नेक्स्ट I2 इंटेंसिटी करके देखा गया तो वो उसी सेम पोटेंशियल वैल्यू पर ज़ीरो आ गई. उसके बाद I3 इंटेंसिटी करके देखा गया और एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव किया गया तो उसी सेम नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू ज़ीरो आ गई. इसका मतलब कि एक फिक्स्ड यहाँ पर पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू है, जिसकी बेसिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुँच पाएगा, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो. तो ये एक सेकंड कंक्लूजन निकल रहा था. ये तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका हो गया था दैट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट जो यहाँ निकल करके आया कि एक नेगेटिव एनोड पोटेंशियल वैल्यू है जिसके लिए नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच अप टू द एनोड प्लेट and that negative anode potential is called stopping potential or cutoff potential. So stopping potential, stopping नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे रहा है एनोड तक आने के लिए. ठीक है, so this is called stopping potential or cutoff potential. Clear? So this one is the second conclusion from the graph number 2. ये ग्राफ आप लोग एज सच जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो बिकॉज दिस ग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट वन. ये हर एक ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसका अभी आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ ओनली. उसके बाद आपका आएगा दैट फोटोन थ्योरी, अगेन यू हैव टू यूज़ दिस ग्राफ. एंड न्यूमेरिकल्स भी आपके इसी ग्राफ के बेसिस से बनते हैं. तो ये ग्राफ आपके लिए एक समझ लो की पॉइंट है. इस ग्राफ को अगर आप लोग गो थ्रू हो जाते हो और हर एक ग्राफ आपके माइंड में है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को या ये कह लो कि इस चैप्टर को समझ लो आपने 100% आप इसके मार्क्स गेन कर सकते हो इस चैप्टर के. ठीक है, सो दिस वन इज़ द सेकेंड ग्राफ. नाउ कम टू द थर्ड ग्राफ. ऑब्जर्वेशन चल रही थी उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर. सो थर्ड ग्राफ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्राफ. दिस फोटो करंट मैंने आपको बार बार बता दिया दैट दिस इज द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड ड्यू टू द रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन. ओके, सो दिस वन इज I फोटो करंट एंड दिस वन इज एनोड पोटेंशियल. ओके, एंड दिस इज एनोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय V. इसको V0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका स्पेसिफिक सिंबल है दैट इज V0. O मीन्स जीरो वैल्यू ऑफ फोटो करेंट. तो O से लर्न रखना दैट दिस इज V0 विच इज़ द कट ऑफ पोटेंशियल. द कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? द कट ऑफ पोटेंशियल इज द एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनोड पोटेंशियल फॉर विच द फोटो करेंट वैल्यू इज जीरो. दैट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल. ओके, डेफिनेशन पूछी जाती है. सो फोटो करेंट में अब नेक्स्ट केस देखते हैं एंड नेक्स्ट केस इज दिस. नाउ
दे हैव सीन दैट इंटेंसिटी के वेरिएशन में सैचुरेटेड करंट की वैल्यू जो होती है दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम द इनिशियल लेवल, बेस लेवल से इंक्रीज कर जाती है इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द intensity of incoming radiation. Now the second case is the frequency. So they have observed that if we increase the frequency, this is nu 1, next frequency is nu 2, and the next frequency is nu 3, nu 1, nu 2 and nu 3. Okay, so these are the three frequency of incoming radiation. UV radiation की frequency है ये, and remember this, nu 1 is less than nu 2 is less than nu 3. यानी अब इंटेंसिटी नहीं वेरी कराई जा रही है, अब फ्रीक्वेंसी वेरी कराई जा रही है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू गो थ्रू विद द वीडियो वेयर आई हैव डिस्क्राइब दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ NCERT फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, और उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है. उसका वीडियो है मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्लेलिस्ट में. तो वहाँ पर जो यूवी रेडिएशन आप देखोगे तो यूवी रेडिएशन का एक बैंड होता है, यानी यूवी रेडिएशन एक सिंगल लाइन नहीं है, इसकी एक रेंज है. तो रेंज कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द मीन्स वन फ्रीक्वेंसी टू द सेकेंड फ्रीक्वेंसी. ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की एक वेरिएशन है, रेंज है. तो यहाँ हमने क्या किया, अब इंटेंसिटी नहीं बढ़ा करके हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कराया. तो फ्रीक्वेंसी पहले nu 1 थी, फिर nu 2 हुई, फिर nu 3 हुई. तो उस केस में क्या हुआ कि अगर हम nu 1 रख रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हमें एक सैचुरेटेड करंट मिल गई, और नेगेटिव साइड यानी पोटेंशियल को हमने जब नेगेटिव किया, किस पोटेंशियल को? एनोड पोटेंशियल को. तो नेगेटिव साइड में हमें एनोड पोटेंशियल की एक वैल्यू मिली जो कट ऑफ पोटेंशियल था, जहाँ कट ऑफ क्यों होगा? क्योंकि एनोड करंट ज़ीरो हो गई. ठीक है, तो जो करंट थी, नॉट एनोड करंट, इट इज़ फोटो करंट, फोटो करंट ज़ीरो हो गई. किस वैल्यू के लिए? V0 1 के लिए. सो दिस इज़ द कट ऑफ पोटेंशियल फॉर nu 1 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब क्या किया गया कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी nu 1 से nu 2 कर दी गई. So if there is an increase in the frequency, there is more negative value of the anode potential. यानी हमें एनोड पोटेंशियल को और नेगेटिव पे ले जाएंगे, तब जा कर के फोटो करंट ज़ीरो होगी. नेक्स्ट केस, if we increase the frequency up to nu 3, then what happened? Then we have to apply the more negative value of the anode potential to get the zero photocurrent value. This value is V03 minus. सो माइनस नेगेटिव साइड में क्योंकि वैल्यू है, और एनोड पोटेंशियल मीन्स होता पॉजिटिव है, लेकिन उसकी नेगेटिव वैल्यू को चेक किया गया कि कहाँ पर हमें फोटो करंट ज़ीरो मिलेगी. तो nu 3 पर हमें और नेगेटिव वैल्यू पे फोटो करंट ज़ीरो मिल रही है. मीन्स ये हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर वो हम इंक्रीज़ करा रहे हैं तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होता जा रहा है. ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी होगी दैट इज़ EV0. कैसे होगी ये एनर्जी EV? अब पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन देख लो. V दैट इज़ इक्वल टू W/Q होता है. सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q. W इज़ एनर्जी, W वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, दोनों की यूनिट सेम होती है. सो वर्क यूनिट इज़ जूल, एनर्जी यूनिट इज़ जूल. तो जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी होती है. एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q. Q इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए यहाँ पर E लेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू अगर E है तो EV0 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में.
अब इस वैल्यू ऑफ एनर्जी को अगर हम चेक करें तो दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी जो इलेक्ट्रॉन कैथोड्स प्लेट से एनोड प्लेट तक पहुंच रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट इज़ इन द मूविंग स्टेट। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई हो गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड प्लेट पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो मीन्स क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू EV0 यानी उस इलेक्ट्रॉन की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए जब हम एनोड पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव करें। माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल हैं। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव वैल्यू तो है बट उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो माइनस साइन नहीं लगेगा। इसलिए इस ग्राफ से कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, दैट शुड बी इक्वल टू EV0। ओके, गॉट दिस कॉन्सेप्ट? सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन रिजल्ट फॉर ग्राफ नंबर 3। करंट के बेसिस पर आपने देखा कि करंट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है और करंट पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। सैचुरेशन करंट सेम है बट उसमें यहाँ पर जो एनोड पोटेंशियल है, जो कट ऑफ पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू वेरी कर गई। इफ़ वी आर गोइंग टू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। ओके, क्लियर है ये? नाउ कम टू द लास्ट ग्राफ ऑब्जर्व्ड बाय लेनार्ड। दैट लास्ट ग्राफ, 4 ग्राफ यहाँ पे टोटल थे ड्रॉन। उस ग्राफ के बेसिस पर देखा गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, और हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ले सकते हैं V0। E तो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू जो होती है EV0 अगर आप लोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू ग्राफ, और अगर V0 लोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल लोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी। मीन्स क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने देख लिया है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई E, तो यहाँ पर केवल E का मल्टीपल ग्राफ आ सकता है, नथिंग चेंज। ठीक है, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड हियर इन दिस ग्राफ वी आर अप्लाइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। Okay, so what happened here? The kind of graph is this one. This was the graph. These means what? ये frequency है. This one is the frequency where the kinetic energy maximum is 0. यानी इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी आ रही थी जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 हो गई। यानी अगर हम जो इनकमिंग रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसको हम मिनिमम करते चले जाएं तो क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की लिमिट तक पहुंचते पहुंचते एक वैल्यू एनर्जी फ्रीक्वेंसी की ऐसी भी मिल रही है जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी यानी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना हो ही नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 0 होने का मीनिंग यही आ रहा है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आ रहे हैं, उस सरफेस तक ही रुक गए। ठीक है, तो अगर ये सरफेस तक रुक गए हैं तो ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हुई इनकमिंग रेडिएशन की जिसकी बेसिस पर देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना। दैट फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय μ0। दैट मीन्स μ0 is the minimum frequency value below which no photoelectric effect occurs। And this minimum frequency is called threshold frequency। तो एक ये न्यू वैल्यू निकल के आ रही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली यूज होती है न्यूमेरिकल में। इंपॉर्टेंट पार्ट दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric effect phenomena occurs because of the zero kinetic energy, maximum kinetic energy of free electron। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है अगर इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी μ0 से कम हो जाएगी तो।
ठीक है। इवन न्यू नॉट पर भी ज़ीरो है, इसका मीन्स क्या है कि न्यू नॉट पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना स्टॉप हो जाता है। उससे ऊपर करेंगे तो एनर्जी, यहाँ पर आप देखो इससे ऊपर की अगर हम फ्रीक्वेंसी वैल्यू पाएंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना हो रहा है। तो ये ग्राफ आ रहा है विच इज़ अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ के बेसिस पर अगर हम देखते हैं, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इस ग्राफ के बेसिस पर हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आती है ना, c इज द इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो E काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल टू m इज द स्लोप। ये स्लोप आ रहा है, ये स्लोप जो था वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है विच इज़ द h, एंड x एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज न्यू। एंड यहाँ इंटरसेप्ट क्योंकि माइनस में जा रहा है तो माइनस ऑफ सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू माइनस वैल्यू that is represented by phi. Phi is what? It is the work function. Okay? So minus value phi. तो ये इक्वेशन जो थी ये डायरेक्टली इस ग्राफ के बेसिस पर बनी कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू h, this one is the Planck constant which is equal to the slope of this graph, and nu is the x-axis value which is the frequency minus of phi. phi is वर्क फंक्शन हियर। तो वर्क फंक्शन को मैंने आपको अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया था, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, उसका पूरा मैकेनिकल प्रोसेस बताया था, मेटल की प्लेट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ हियर ओनली दैट वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड, दैट मीन्स मेटल प्लेट विच वी आर चूजिंग। अगर हम सोडियम चूज़ कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन अलग होगा, अगर हम पोटेशियम यूज़ करें वर्क फंक्शन अलग होगा, मैग्नीशियम and cesium and rubidium, all that, for all different kind of metallic surface there is different value of the work function। यानी वर्क फंक्शन से ही आइडेंटिफाई करते हैं that which metal we are using। मैंने आपको ये भी बताया था कि what is the maximum value of work function and the minimum value of work function। So this is the question for you, can you tell the maximum value of work function and the minimum value of work function? Okay, so you will comment in my video, under my video in comment box, that the value of maximum work function and minimum work function, and for which metal that value occurs। okay, तो metal का name भी आपको बताना है और work function की value भी बतानी है। just I want to check कितने बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो और सीरियसली उस चीज़ को रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन अभी यूजफुल रोल प्ले करने वाली है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में। सो दिस वाज द लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड एंड हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस आई इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी निकल के आई हैं, लाइक द कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, and maximum kinetic energy, photo electrons, photo current, intensity, frequency and threshold frequency। ये जो different aspect निकल कर के आए ना, इन्हीं aspect को अब reason देना है। इन्होंने experiment कर लिया, इस experiment को observation दे दिया, अब इसका reason बताना था from the known theory and from the modern theory। तो known theory थी classical theory and modern theory है Einstein theory। तो आइंस्टाइन थ्योरी क्यों आई, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी फेल हुई। तो ये सारा आप पढ़ोगे, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है और वो एक्सप्लेनेशन जिस बेसिस पर दिया जाएगा वो भी आप पढ़ोगे, एंड द मॉडर्न थ्योरी विच इज़ द आइंस्टाइन थ्योरी वो भी आप पढ़ोगे, बट इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।